26 फरवरी 2019 वो तारीख है जब देश ने अपने वीर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। पीओके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद अब कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन आया है, या फिर यूं कहें कि अब सिद्धू के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीओके में भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर सिद्धू अब क्या बोल रहे हैं, ये बताने से पहले हम आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद दिया था। कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। और इसी बयान के बाद सिद्धू की चौतरफा निंदा होने लगी। नतीजन पूरी फिल्म मीडिया से उन्हें बाइकआउट कर दिया गया। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से भी हाथ धोना पड़ा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें कलयुग का जयचंद करार दिया। मेरा इतना मानना है कि वो लोग जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बतलाते हैं, वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है। चौतरफा आलोचना झेलने के बाद अब सिद्धू के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आज जैसे ही भारत की ओर से पीओके में की गई कार्रवाई सामने आई, जिसमें पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, सिद्धू के सुर एक झटके में बदल गए। जो सिद्धू पहले बातचीत की दुहाई दिया करते थे, आज वो सेना के इस ऑपरेशन पर कह रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है। भारतीय वायुसेना की जय हो, जय हिंद की सेना। तो देखा आपने, ये वही सिद्धू हैं जो अपने दोस्त और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के एक बुलावे पर दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Good morning, friends, and welcome to this briefing, and thank you for coming at a very short notice. I have with me the Foreign Secretary of India, Shri Vijay Gokhale, who will read out a statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. Sir, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave Jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed,
to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you. जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन।
आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की आवाज। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा।